attend IDFON 2024 Phase 2, organized by Institutional Innovation Council, Pandit Ravi Shankar Sunil University, Raipur. I welcome our chief guest, Honorable Vice Chancellor Professor Sachidanand Shukla sir, and Registrar sir Mr. Shailendra Patel, वो दोनों अपने To begin this event, let us sing the blessing of Goddess Saraswati, the embodiment of knowledge, wisdom, and the arts. I invite Neha Verma ma'am to lead us in Saraswati Vandana.
request Dr. Kavita Thakur ma'am to welcome our guest, Professor Ravindra Brahmesi. Now I would like to request Dr. Kavita Thakur ma'am to welcome our guest, Professor S. Ram with Saturday and Speaker. Officially commence the program, I would like to invite Dr. Kavita Thakur ma'am to deliver the welcome address. Good morning to one and all present over here. I welcome you all in today's function, Ideathon Phase 2024. This is our dream event, and today this dream comes true, right? So a big round of applause for this. I welcome Honorable Vice Chancellor Professor Sachidanand Shukla sir in his absentia, who is the whole and sole source of inspiration for this event. So, welcome sir. Also, I welcome the esteemed judges, faculties, eminent scientists, academicians, entrepreneurs to give their consent for evaluation of our filtered team. So again give a great round of applause to them. First of all, I welcome Professor S. Ram, Professor Marketing, Indian Institute of Management, Naya. Then I welcome entrepreneur Mrs. Namrata Ghai, Director, Chhattisgarh Mushroom Processing Unit, Tendua, Naya Raipur. I also welcome Dr. Chandrasekhar Jatov, Assistant Professor, Information Technology, NIT Raipur. I also extend my warm welcome to Professor Ravindra Brahmesi, Professor and Head, School of Studies in Electronics, Pandit Ravi Shankar Shukla University, Raipur. I also welcome in his absentia, but he is on the way, Shri Sanjeev Jain, Advisor CREDA. It is also a great entrepreneur in the field of renewable energy and technology. So welcome Shri Sanjeev Jain sir. He will soon join us. Then I welcome Shri Shashank Jacodia, a great entrepreneur in the field of mines, and he promotes the young entrepreneurs in any field. Okay, so he is very much interested for this event. He will soon join us within an hour. So I welcome all the 6 esteemed judges who are sitting in front of you. They will evaluate your ideas, right? And rules for this you might have already known. 10 minutes is given for the presentation, right? 5 minutes for question answer. 5 minutes for question answer, right? And 4-5 points are given for evaluation. Will be judged. First is relevance of problem and solution, right? So 2 sub-points, whether this identified problem really exists in the society, market or industry. Second point is how big is the problem? Low, moderate, high. So this is first point. On the basis of your idea will be judged. Second is feasibility of solution.
specific, measurable and attainable. On the basis of 3 points, you will be judged, your idea will be judged whether it is feasible or not. Next is then attainable and realistic. These 2 points are also included under the feasibility. Timeline is also included. So the feasibility will be judged by a specific, measurable, attainable, realistic and timeline. Then applicability of your solution. So this applicability of solution is just on the basis of 2, usability and scalability. Right? Then third point is economically sustainable. Your idea will be whether economically sustainable or not. Then environment sustainability, whether that idea will sustain in the environment, not present, but you will have to show that your idea will sustain for at least 5 years also. And then plan how we can extend it for sustainability period up to 10 years. Next, existence of intellectual property component if any. यदि आपको ऐसा लगता है कि ये इसको हम IRP फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं. So these are the points over which your ideas will be judged. Okay? So you have to do presentation before all the 6 judges. Each idea will be judged by 6 judges. 2 of the judges are just coming. हो सकता है आपको आइडिया रिपीट, अगर वो देर से आए तो आपको आइडिया रिपीट करना पड़ जाएगा. तो वन ऑफ द जज इज ऑलरेडी आए. यस प्लीज. Shri Shashank Jacodia, very great entrepreneur and he is very much interested. In our ideas. I am Ratanshi Pradhan and I am from CBS. I have registered under the theme of Automation, Innovation and Supply Chain Management, and I aim to develop an app that is Connectin, that is a one-stop connection to world. Now, it covers some problem statement and we would like to discuss this further. Before this, we would like to discuss the outflow of our slides. That is problem statistics, solution, objective, existing platforms, our model and pricing strategy. Now, what is the problem? Over 10 million of students and graduates find themselves ill-equipped to transition from academia to the workforce, contributing to a staggering 13.6% youth unemployment rate globally. These are the statistics given by Indian Labour Organization 2023. They often lack access to tailored career guidance and relevant skill building opportunities and practical experience, leading to unemployment, career frustration and significant rise in mental health challenges. Now, some more insights about this problem. That is 13.6% global youth unemployment rate. 43% of employers struggle to find skilled candidates. 68% of students report anxiety over career planning. 50% of graduates enter the workforce without job skills. 18% increase in career-related depression among youth. Now, what is the solution for this problem? A platform that integrates career guidance, skill development opportunities, collaborations for project, job matching system and interest-oriented test. Now, what is the objective of our app? The objective of Connectin is to bridge the gap between academic knowledge and real-world application, ensuring career readiness, increased job satisfaction and decreased young unemployment rates through a platform which aims to facilitate community building among users which share interest while providing a safe, inclusive space for networking. So, I know
These problems were identified by other users or market trends also. But now we would like to see about the existing platforms. There is a little summary about this existing platforms. So we have a Glassdoor platform. It offers company reviews, but it lacks networking capabilities. Now the another one is Shaper, focuses on networking but does not offer job matching or skill assessment. Third one is Coursera and Udemy, offer learning platforms but lack integrated social networking and community engagement. The fourth one, most used one, is LinkedIn. It has most of the features, but it does not often give feedback when we apply for the job, and thus we find difficult to apply for the job and improve our skills. Now our model. So what is unique in our model? So we aim to provide AI and testing, that is incorporating psychometric test, identifying suitable career options, real-time skill assessment, that is assessing skills and learnings in real time as per industry needs. Next, university and corporate partnership, facilitates internship and jobs. Industry-driven course development, collaborating with industry leaders to create and niche courses that directly addresses current market gaps. Gamification, like introducing badges, leaderboards and challenges to increase users' engagement. Progress tracking, providing detailed progress report like we used to have in schools and universities to visualize their journey. Then, enhance data security, because data privacy and security matters a lot. So we would like to provide end-to-end encryption and secure identity verification like Aadhaar or passport, etc. by using it. Premium services we would like to offer is certified and personalized career coaching, advanced skills development courses and certifications, priority access to job opportunities, expert mentorship through experts and leaders, premium networking events like organizing conferences and webinars, customized career roadmap for individuals, resume and portfolio building and its review on individual basis. Now, what is our pricing strategy? So, we would like to charge money for subscriptions. Then we would like to earn through commission-based job matching and freelancing, through recruitment agencies like we have freelancing platforms, Upwork, Fiverr, etc. And then we would like to sell our data analytics to government agencies so that we could improve the job rate, advertising and sponsored courses, selling enterprise solutions to startups, project collaboration charges to SMEs. This is our estimated expense. So for this we would like to have some expense summary, that is development. For development we would like to have 50,000 to 60,000, design 10,000 to 15,000, marketing 10 to 15,000, legal 10 to 15,000, and these are the other charges we would be considering. By taking in note that we would be going for open sources or free sources like WordPress or the Google Analytics for tracking. So this is price review. We have LinkedIn Learning 1,400 per month. This is the basic subscription one, and Coursera 3,600 a year for Coursera Plus. Upgrade 50,000 for full courses. And what we aim to provide is Connectance pricing it 500 to 1,000 per month. Thank you. Now I have a video related to this. Why do 70% of young professionals struggle to find the right job? It's time to change that with Connecting. Imagine having the power of career success in your pocket. With Connecting, you get real-time internship and job notifications tailored just for you. Need technical assistance? Connecting's got your back with expert guidance and resources. Seeking career advice? Our app connects you with industry leaders who can light your path. But don't
hardware equipped. Connecting helped me land my dream internship at Sara Marketing Studio, a game changer for career growth. John, software developer. Connecting isn't just an app, it's your career companion. Whether you're a student, professor, or industry professional, Connecting bridges the gap between talent and opportunity. So what are you waiting for? Download Connecting today and start your journey towards career excellence. Your future is just a tap away. Connect, empowering your career on Connect. स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीराम है एंड मेरे दोस्त हैं सतीश कुमार एंड अब्दुल रज्जाक। हम लोग आज प्रेजेंट करने वाले हैं अपना आइडियाथॉन में। तो मैं आप लोगों को अपनी आप बीती सुनाना चाहूँगा। मेरे पिताजी एक ठेकेदार हैं जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और कंस्ट्रक्शन के काम के लिए उन्हें वर्कर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कभी कभी उनको वर्कर मिलते भी हैं और कभी कभी नहीं भी मिलते हैं। जब कभी नहीं मिलते हैं तब उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है या कभी कभी बहुत ज़्यादा लॉस भी हो जाता है, क्योंकि काम को उनको एक लिमिट टाइम में कंप्लीट करके देना होता है। तो कभी कभी नहीं पूरा होने पे उनको बहुत सारा लॉस भी उठाना पड़ जाता है। और एक दूसरी दिन की बात है, और ये पहला फेज हो गया। एंड सेकेंड फेज में हम तीनों जो है एक दिन सरस्वती नगर स्टेशन से जो है दुर्ग जा रहे थे ट्रेन से। तो ट्रेन में एक व्यक्ति आया हमारे पास और हम लोगों से कुछ पैसे मांगने लगा कि मैं बहुत दिनों से 3 दिनों से वो खाया पिया नहीं था, तो वो कुछ पैसे मांग रहा था खाने पीने के लिए। तो हमने उसे देखा, वो अच्छा खासा था, मतलब काम करके वो खाना पीना अपना जुगाड़ कर सकता था, लेकिन उसको काम नहीं मिलने के कारण वो जो है हम लोगों से पैसे मांग रहा था। जब हमने पूछा कि ऐसा क्यों है, आपको काम क्यों नहीं मिल रहा है, कैसे हुआ, क्या हुआ, तब वो बताया कि वो पिछले 5 दिनों से जो है बिलासपुर गया हुआ था घर में जो भी जमा पूंजी थी उसको लेके, लेकिन वो वहां पास गया, काम ढूंढा, उसको काम नहीं मिला। तो जब उसके पास पैसे खत्म हो गया तब वो वापस अपने घर जा रहा था। उस बीच ट्रेन में हमारी मुलाकात हुई और वो पैसे मांग रहा था। तो वो जो है रोते रोते हम लोगों को बता रहा था कि मैं कैसे अभी अपने घर जाऊंगा, कैसे अपने फैमिली को फेस करूंगा, मैं उनके लिए कमा के उनका गुजारा भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा करके वो बहुत ही ज्यादा रो भी रहा था और अपने घर जाने के लिए सोच रहा था। तो ऐसे लोग हमें हमारे शहर में, दूसरे शहरों में बहुत सारे मिल जाएंगे, जो कि ये देखिए, जैसे कि हम लोगों ने टाटीपद रायपुर गए थे, वहां पर देखिए बहुत सारे वर्कर्स ऐसी काम के लिए खड़े रहते हैं। और रामनगर जो रेलवे फाटक है, कबीर चौक, वहां पर भी बहुत सारे लोग काम की तलाश में खड़े रहते हैं कि कोई आए और हमें काम के लिए लेके जाए बोल के। तो यहाँ पर जो मैंने पहला स्टोरी बताया अपने पिताजी का, और दूसरा एक व्यक्ति का जिसको काम चाहिए, और मेरे पिताजी को जिसको काम करने वाला चाहिए। इन दोनों बीच में गैप है बहुत ज्यादा, क्योंकि दोनों बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो हम लोगों ने इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन लाया है अपने एक मोबाइल ऐप में, जो है को कनेक्ट ऐप। हम लोगों ने और भी बहुत सारे जगह में गए, जैसे कि कोटा गए, वहां पर हम ठेकेदार से भी मिले, होम ऑनर से भी मिले, और ये जो है के मार्ट का है, और ये जो है बढ़ाई के यहाँ भी गए थे। उनको भी यही सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे बढ़ाई को काम करना है, उसको बनाना है, लेकिन उसके पास बहुत ही कम ऑर्डर्स आते हैं। और जैसे किसी को घर बनवाना है तो उसको वर्कर कहाँ से आएंगे, ये सब चीज जो है प्रॉब्लम्स आती जाती हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन लाया है, हमारा ये मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है को कनेक्ट, जो कि उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का काम करेगा और दोनों बीच में जो गैप है उसको फुलफिल करेगा। इसमें इनोवेशन ये है कि जैसे कि दोनों हमारे ऐप में एज अ वर्कर और एज अ कस्टमर ज्वाइन करेंगे। फिर उसके बाद जिसको काम करवाना रहेगा वो अपना प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट सभी ऐप में जो है अपलोड करेगा। देन उसके बाद वहां से जो वर्कर्स रहेंगे वो लोग उस फेच कर पाएंगे उसको। इसको आगे बताएंगे अब्दुल।
तो जो हमारा ऐप का स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे किसी कस्टमर के प्रेफरेंस देखें तो उसे अपने काम का पोस्ट करना पड़ेगा, तो वो अपने काम की एक इमेज डालेगा, उसका डिस्क्रिप्शन अपलोड करेगा उस इमेज में। फिर वो पोस्ट आगे बढ़ेगी, वो जाएगी वर्कर के नोटिफिकेशन में कि आपका एक पोस्ट अवेलेबल हो चुका है, क्या आप उसको अप्रोच करना चाहते हैं। अगर वो अप्रोच करेगा तो उसकी अप्रोच जाएगी फिर कस्टमर के पास, और कस्टमर उसके अप्रोच से एक्सेप्ट होता है तो एग्री करेगा, देन वो 20 रुपीज़ पे करेगा, जिससे उसकी डिटेल्स सारी विजिबल हो जाएगी, वो उसको कॉल कर पाएगा। लेकिन कॉल उसका नंबर नहीं रहेगा, व्हाट्सएप में जैसे कॉल होता है वैसे ही होगा। वैसे ही हम अगर वर्कर पर्सपेक्टिव से देखें तो वर्कर के पास एक पोस्ट रहेगा कि उसके पास बहुत सारे पोस्ट आएंगे कि किस किस एरिया में किस कौन कौन सा काम उसके लिए अवेलेबल है। जो उसके नियर लोकेशन में अवेलेबल है वो उसको अप्रोच करेगा, देन उसको पे करने की बुक करने की एग्री करेगा, और पे करने के बाद ही उसकी डिटेल्स शो होगी कि आप वो एग्री है कि नहीं है। फिर हमने इस ऐप को बनाने के लिए मार्केट में हमने उठे तो हमने कहा कि 1 लाख लगे ऐप बनाने में, तो हम वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने 1 मंथ लिया और खुद से एक ऐप डेवलप करना चालू कर दिया। तो हम उस ऐप को डेवलप कर रहे हैं जो इनिशियल स्टेज में है, अभी तक इतना काम हुआ है। उसमें लॉगिन करना है, पासवर्ड डालना है, फिर क्रिएट अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा उसको। इसको हमने खुद सीखा है 1 मंथ में कि कैसे ऐप डेवलप करें, ताकि 1 लाख रुपया हमें ना देना पड़े किसी और को, वो हम इसमें अपने ऐप में इन्वेस्ट कर पाए। फिर इसमें एक रूल्स है कि कस्टमर या एज ए प्रोफेशनल आप जो सबमिट कर रहे हो, आप अपना क्रिएट अकाउंट करोगे, फिर आपको पोस्ट अपलोड करना पड़ेगा, अपने वर्क की पोस्ट वहाँ डालोगे, आप उसका डिस्क्रिप्शन डालोगे, देन उसको अपलोड करोगे, वो अपलोड होगा जाके जाएगा वर्कर के नोटिफिकेशन में कि ये पोस्ट अभी राइट नाउ अवेलेबल है। फिर वो लोकेशन डालेगा कस्टमर कि इस लोकेशन में कितने वर्कर्स अवेलेबल है, जो वर्कर्स अवेलेबल होंगे वो उसको बुक करेगा, देन सब विजिबल हो जाएगा कि उसकी डिटेल्स उसके विजिबल हो जाएगी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो उसको अपना प्रॉब्लम शेयर कर पाएगा, वो उसके अपने लोकेशन। इस ऐप में हमारा लोकेशन फीचर रहेगा कि वर्कर जिस लोकेशन में उसकी लोकेशन उसकी लाइव फीड हमारे पास आएगी, तो दिखाया जाएगा। और इस ऐप में हमारे जो कंप्यूटर्स है वो लिंक्डइन है, जस्ट डायल है। देखिए हमारा ऐप इन दोनों ऐप से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि जो जस्ट डायल ऐप है वो एक कंपनी हायर करती है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करती है, लेकिन जो हमारा ऐप रहेगा उसमें वर्कर्स के लिए फ्रीडम रहेगी, वो जिस समय काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फील्ड डायरेक्ट कंपनी हमारे कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार से रहेंगे, उनसे भी हमें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। फिर हमारे की पार्टनर्स रह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, अगर हम उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं तो हम कई सारे वर्कर्स को अपने ऐप में ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। फिर पंचायत की लीडर्स भी रहेंगे, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मिनिस्ट्री भी हमारे पार्टनर्स बन सकते हैं। फिर हमारे की हम जो जॉब सीकर्स हैं उनको बिना किसी फीस के अपने ऐप में रजिस्टर करवाएंगे। और की रिसोर्स है कि हम प्रोवाइडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एक्सपीरियंस वर्कर्स जो अपने जॉब नहीं ढूंढ पाते हैं, काफ़ी जगह घूमते हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिलती। फिर वैल्यू प्रोपोजिशन, जैसे वर्कर्स की प्रॉब्लम आती है कि उन्हें अच्छा काम नहीं मिल पाता है हर जगह पे, वो अपने वर्क के लिए कहीं नहीं घूमते रहते हैं। और वुमर्स की प्रॉब्लम आती है जैसे उन्हें इलेक्ट्रिशियन चाहिए, तो उन्हें काफ़ी टाइम ढूंढना पड़ता है लेकिन फिर भी उन्हें इलेक्ट्रिशियन नहीं मिल पाते, तो हम अपने ऐप के थ्रू उसको पहुँचाएंगे। 24/7 एक्सेस रहेगा हमारे ऐप में और बुकिंग के लिए। अब हम देखते हैं इसका बिजनेस मॉडल। यदि हमें 5 लाख इन्वेस्टमेंट मिल जाती है तो हम 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट में इन्वेस्ट करेंगे। उसमें हम 40 के यानी न्यूज़पेपर में, फिर बैनर में 30 के, फिर सीजी लोकल फोटोग्राफर और डांसर्स को 40 के देंगे, डिजिटल मार्केटिंग 40 के और कस्टमर रजिस्ट्रेशन 40 के। जैसे उबर और ओला में सर होता है कि जब कस्टमर किसी वर्कर से मिलता है तो वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर लेता है, तो एक बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है कि अपना कस्टमर हम खो दे रहे हैं। तो उसके लिए हमने 70 के पहले से बचा के रखा है ताकि हम काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड्स दे सकें कस्टमर्स को, वर्कर को, ताकि वो हमारे ऐप के लिए लॉयल रहे और अपना ईच अदर अपना नंबर शेयर ना करें, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर ना करें। फिर अगर हम इस 5 लाख इन्वेस्टमेंट से अगर हम 1 मंथ में 4 लाख कस्टमर अट्रैक्ट कर सकते हैं तो वो 20 रुपीज़ पे करेगा, इससे 1 वीक में 80K बन जाएगा। फिर सेकंड पूरा 1 मंथ में पूरा हो जाएगा 3.2 लाख हमारा इन्वेस्ट जो किएंगे उसका प्रॉफिट रहेगा। फिर सेकंड मंथ में वही चेन रिएक्शन के थ्रू अगर हम 5 मोर कस्टमर ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कुल हो जाएंगे 4500 कस्टमर। तो वो अगर वीक में 20 रुपये हम पे करते हैं तो वो 90K हम वीक में कमाएंगे, तो इन मंथली 3.6 हो जाएगा। तो टोटल इन 2 मंथ्स हम लोग जनरेट करेंगे 6.8 लाख, जिसमें प्रॉफिट रहेगा 1.8 लाख हमारा प्रॉफिट रहेगा। तो ये इसकी स्केलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स और कई सारे कैटेगरीज को खुद ऐड कर सकते हैं। एक वर्कर अपनी कैटेगरी खुद ऐड कर सकते हैं इस फील्ड में, आगे इस ऐप में अपना खुद डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि वो किस वर्क से रिलेट करता है, किस फील्ड में काम करना चाहता है, किस डोमेन में जाना चाहता है। वो उसकी एक फ्रीडम रहेगी, हम किसी को ना हायर करेंगे, वी ओनली हैव टू
but 20 rupees booked for a worker only, 20 rupees, no initial fees. तो आगे वो जो काम करते हैं वो उनका है कि आप कितना काम करें, कितना पैसा देना चाहते हैं, वो उनके ऊपर है, वो कस्टमर कितना उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं। थैंक यू। तो रैश वॉकिंग में गिर जाओगे आप। तो रैश ड्राइविंग जैसे टेक्सटाइल ट्रांसपोर्टेशन कोड ने डिफाइन किया कि रेकलेस ड्राइविंग इज डिफाइंड एज अ ड्राइविंग अ व्हीकल विलफुली और वेटर डिसरिगार्ड ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी। रेकलेस ड्राइविंग इज अ मिसडिमीनियर ऑफेंस। मतलब कि आप जानबूझ के अगर आप बुरी ड्राइविंग करते खुद को हार्म भी करते हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी हार्म करते हो, इसको रेकलेस ड्राइविंग बोलते हैं। अब ये गवर्नमेंट इंडिया की रिपोर्ट्स है कि अराउंड 4,60,000 अबाउट रोड क्रैशेस हुए, जिसमें 1,68,000 अबाउट डेथ्स हुई एंड 4,43,000 अबाउट इंजरीज हुई। This is a 12% increase in number of crashes and 9.4% increase in fatality from previous year. On an average, India experiences 1,264 accidents and 642 deaths per day, and 53 crashes and 19 deaths every hour. 83.4% of victims are between the ages of 18 and 60. So 18 और 60 जो हमारी वर्किंग एज होती है, हमारी जो कंट्री की बैकबोन होती है, डायरेक्टली उस पे सबसे ज़्यादा इसका आभास होता है। एंड द 18 और 45 के जो एज है उस पे 66.5% होता है ऐसे लोग। और ये सिर्फ डेथ्स की बात है, सिर्फ बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं वो रिकॉर्ड भी नहीं होते, या बहुत इंजरीज हो जाती है वो सब रिकॉर्ड भी नहीं होती। तो अगर सिर्फ छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा ये तो दो है, इनमें सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट्स है वो बढ़ रहे हैं बाय एवरेज ऑफ 25%। तो 25% है, इस नंबर को प्लीज आप याद रखिए कि मैं आगे इसका और सिग्निफिकेंस बताऊंगा। और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ हैज द हाईएस्ट डेथ रेट इन द कंट्री, and in 2023 in Chhattisgarh there were 1,364,68 recorded accidents with around 6,200 deaths and around 12,000 injured. फिर जो डेथ्स होती है उनके कारण के बारे में देखा गया है, तो सबसे ज्यादा जो है 55% से अबव है ओवर स्पीडिंग और रेंजर्स और रेकलेस ड्राइविंग अराउंड 27.5%। और जहां डेथ्स देख सकते हैं कि स्पीडिंग में 2022 में जो डेथ हुई है 71.2% से स्पीडिंग की वजह से। तो देख सकते हैं कितना मेजर प्रॉब्लम है ये। फिर अगर हम सोचें कि रैश ड्राइविंग होती क्या है, तो उसको बताना बहुत मुश्किल है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, बट अगेन कुछ पैरामीटर्स हैं जो हर चीज में कॉमन होते हैं। तो ड्राइवर जो रहते हैं वो जनरली आप देखा होगा, मैंने तो खुद रैश ड्राइविंग की इसलिए मुझे पता है कि एक्सीलेटर बहुत तेजी से हम दबाते हैं, बहुत छोटे छोटे गैप से हम स्टीयरिंग व्हील को आज तक देखा होगा काफी लोग जिगजैग चलाते हैं या कट्स वगैरह मारते हैं, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे काफी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। फिर एक जो सिंपल पैरामीटर है स्पीड, अगेन स्पीड एक जगह हाईवे वगैरह में रहती है कि आप ठीक है आप 100 तक भी चला सकते हैं, बट स्टिल अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो क्योंकि इंडियन हाईवेज में कहीं भी कोई भी कभी भी आ सकता है, तो अगेन स्पीड एक बहुत बड़ा वो हो जाता है। तो वहाँ पर हाईवेज में भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं इस वजह से। और सीट बेल्ट पहनना है कि नहीं पहनना है वो भी एक बहुत बड़ा है। फिर आप जो ओवरटेक कर रहे हैं तो आपकी अगल बगल वाली गाड़ी के बीच में डिस्टेंस कितना है, आप कितनी स्पीड से ओवरटेक कर रहे हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम गाड़ी चलाते हुए फोन चला रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं है, हम स्लीपी फील कर रहे हैं, ये सब भी डिस्ट्रैक्शंस हैं। और ये जो है ये थोड़ा यूटोपियन प्रॉब्लम है, बट अगेन ये धीरे धीरे हमें दिखेगा कि आजकल स्टील की जगह कार्बन फाइबर यूज हो रहा है गाड़ियों में, जिससे गाड़ियों का जो वेट है वो सिग्निफिकेंटली लेस होता जा रहा है। वो फ्यूल एफिशिएंसी के लिए बेटर है, बट अगेन अगर एक गाड़ी का वेट 1 टन से अगर 600, 700, 800 केजीज भी होता है और उसमें 4-5 लोग बैठे हैं जिनका वेट 500 केजीज होता है, तो काफी प्रोपोर्शनल आकर अगर वेट डिस्ट्रीब्यूशन गाड़ी में सही से नहीं होता है तो गाड़ी को डिस्टर्ब कर सकता है। तो जो सोल्यूशन है रैशो, तो मेरे सॉफ्टवेयर का नाम दुर्घटना है, वो सॉफ्टवेयर एनालाइज करेगा और जो दिखेगा हमें जो मीटर है उसका नाम है रैशो मीटर। तो प्लीज को कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये रियल टाइम फीडबैक देगा ड्राइवर को उनकी सेफ्टी के बारे में। जैसे आउट ऑफ 100 जैसे टेस्ट में भी 100 मार्क्स ड्राइवर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो वैसे ही अगर आप 100 में गाड़ी चला रहे हैं तो आपने बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, बट मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली मैंने लिया अगर आप 80 के नीचे चला और आप लगातार चलाए जा रहे हैं या उससे भी नीचे जाते जा रहे हैं, तो आप खुद के साथ साथ अगल बगल वाले लोगों को भी बहुत हार्म कॉज कर रहे हैं। तो आपकी जो जीपीएस लोकेशन है वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करेगी कि रेकलेस ड्राइविंग इटसेल्फ इज एन ऑफेंस। This action is taken to prevent potential harm to the drivers and others. The rashometer displays the real-time safety score to the driver. Now, हम use क्यों करें दुर्घटना? बहुत क्लियरली समझ में आ गया कितनी बड़ी प्रॉब्लम है रोड एक्सीडेंट, और ये कीप ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज रोड की जो नंबर ऑफ रोड्स और रोड की जो लेंथ और विड्थ है वो ज़्यादा बढ़ा नहीं सकती क्योंकि वो फिक्स्ड एरिया है।
बट जो कार्स है जैसे लास्ट ईयर 8% से अब इंक्रीज हुई है, अराउंड 40 लाख कार्स खरीदी गई थी इंडिया में। तो ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ बढ़ेगी एंड लाइक अ गेम इट विल ट्राई टू सबकॉन्शियसली रिमाइंड द ड्राइवर टू कीप अ हाई स्कोर। जैसे हम गेम भी खेलते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा हाई स्कोर है, चाहते हैं अच्छा खेले, तो एक सबकॉन्शियसली आपका रिमाइंडर आपको दिखता रहेगा कि आप कैसी गाड़ी चला रहे हो, तो हो सकता है आप बेटर गाड़ी चलाओ। मतलब मेरे को लगता है ऐसा हो गई जैसे डेम में प्रोवाइडिंग अ रियल टाइम फीडबैक। अब गवर्नमेंट क्यों एक्सेप्ट है, क्योंकि ये एक लग्जरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। तो डायरेक्ट हम गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट क्यों एक्सेप्ट करेगी? तो गवर्नमेंट का जो मेन एम होता है, जो मैनिफेस्टो वगैरह जो भी देते हैं, उसका मेन एम रहता है कि आपकी लाइफ को बेटर कर सके अलग अलग एरियाज में किसी किसी तरीके से। तो स्टैटिस्टिक्स हाईलाइट द सिग्निफिकेंट इशू ऑफ एक्सीडेंट्स अफेक्टिंग बोथ लाइव्स ऑफ पब्लिक। द सॉल्यूशन एम्स टू एड्रेस दीस प्रॉब्लम्स एंड एनहांस सेफ्टी। ना एक बात मैं और बताना चाहता हूं, जैसे मैं बुरी ड्राइविंग करता हूं, मैम अच्छी ड्राइविंग करती हैं, तो पर अगर हमारी पॉलिसी सेम है और हमारी गाड़ी सेम है तो मैम और मैं सेम प्रीमियम करता हूं। पर ये तो गलत है, क्योंकि मैं बुरी ड्राइविंग करता हूं, मैं ज्यादा एक्सीडेंट्स करूंगा, कंपनी को मेरे पे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा जो इंश्योरेंस के लिए। बट मैम अगर अच्छी ड्राइविंग करती है, मैम को फिर भी उतना ही पैसा देना पड़ता है, तो ये कंपनी का भी लॉस होता है, मैम का भी लॉस होता है। तो अगर हम इंटीग्रेट करें इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो मेजर इंश्योरेंस कंपनीज है इंडिया में वो गवर्नमेंट ओन्ड है, तो हम उनके साथ इंटीग्रेट करके वी कैन रिड्यूस द प्रीमियम फॉर गुड ड्राइवर्स। दिस बेनिफिट्स बोथ द इंश्योरेंस कंपनी एंड द इंडिविजुअल ड्राइवर। नाउ ये अगेन एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से 5 to 7% जीडीपी का लॉस होता है। बट ये रिपोर्ट जब इंडिया के अखिलेश श्रीवास्तव जी ने एस्टिमेट की थी, तो वो 15.71 to 38.1 बिलियन डॉलर्स, यानी कि 0.55 to 0.135% इंडियन जीडीपी के आसपास आया था। बट स्टिल ये कितना बड़ा नंबर है, मैं इसको ये बताने के बोलना चाहूंगा कि इंडिया का स्पोर्ट्स बजट लास्ट ईयर अराउंड $400 बिलियन, $400 बिलियन, और इस ये बिलियंस में, तो हम देख सकते हैं हमारा ओलंपिक्स में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहेगा, तो यही पैसा हम उस एरिया में लगा सकते हैं, तो कितना हमारा इंप्रूवमेंट होगा। Some say that 1% increase in road accidents lead to a 0.42% decrease in real GDP and 1% increase in casualties to 0.18% decline in GDP. तो ये काम कैसे करेगा? अगेन जैसे बताया मीटर जैसा रहेगा जो आपको दिखाएगा, बट जैसे ये ऐप मैंने बनाया था, तो इसमें ये जैसा हम खुद एंटर कर रहे हैं, ये खुद अपने आप करेगा सॉफ्टवेयर कि आपकी स्पीड, थ्रॉटल, आरपीएम, आपने सीट बेल्ट पहनने के लिए ये डाला तो एक स्कोर आ गया। इसमें उसने आपको कुछ सजेशन दिए, आपने अच्छी स्पीड अच्छे तरह चला दी, आपने कुछ सजेशंस दिए। तो हम इसमें जब काम ऐसा करेंगे कि काफी में गाड़ी में काफी सारे सेंसर्स पहले से ही होते हैं अलग अलग काम के लिए, जैसे एक्सीलरेटर सेंसर होता है, स्टीयरिंग जैसे आजकल पावर स्टीयरिंग होता है, तो उस वजह से एक स्टीयरिंग टॉर्क सेंसर होता है, व्हीकल स्पीड सेंसर होता है, सीट बेल्ट सेंसर होता है। तो ये सारे सेंसर से हम डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये मैंने ये कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट किया था, तो इसकी वीडियो है। जैसे मैं थ्रॉटल बढ़ाता जा रहा हूँ, स्पीड बढ़ती जा रही है, आरपीएम बढ़ती जा रही है, ये अगेन ये कुछ जैसे वैक्यूम कितना है उसके अंदर, कूलेंट कितना है, ये कुछ डाटा मैंने एक्सट्रैक्ट किया था। Conclusion. Using these sensors, we will take the input, analyze the data, and show the real-time results. This will be a game changer as the driver can see how rationally is driving in a simplified form of numbers. You can code a program to compare the data and to collect evidence. You will analyze it and give the result in real time. It will lower the number of accidents, witness seat savers. A lot of money will be saved by not only saving life but also property. Thank you. आपको पता होगा नया रायपुर में ट्रैफिक विसल इंस्टीट्यूट है, यू हैड बीन टू देयर, गए हैं आप वहाँ? ये से सब काम के लिए वो, और ड्राइविंग भी ड्राइवर्स को आजकल सीखना जरूरी है। आई थिंक वो इंडिया में सेकंड बना है। एक चीज़ तो आपको वहाँ मिलना चाहिए क्योंकि डाटास उनके पास भी होंगे। दूसरा, जैसे मैं शुरू से अपनी गाड़ी खुद चला रही हूँ, तो मेन क्या है ना, हमको थोड़ा सा आपने ऐप बनाया सब ठीक है, ड्राइवर्स मोस्टली बहुत कम एजुकेटेड भी रहते हैं, तो वो कितना इसकी बहुत सारी जो थोड़ी कॉस्टली कार्स है उसमें आप देखेंगे इवन कोई ड्रंक है तो वो पीछे वाले को बता देता है कि ड्राइवर इज ड्रंक। तो सेंसर्स रहते हैं आजकल की, वो एल्कोहल को भी साइंस कर लेता है। तो ये सब चीज़ों को भी आपको देखना चाहिए, और मेन तो ड्राइवर्स में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी जो हमारे यहाँ नहीं है, और स्पेशली आजकल के टीनेजर्स और यंग में, और इवन द गर्ल्स आर ड्राइविंग वेरी बैडली नाउ, स्पेशली टू व्हीलर्स में।
जो आपने शायद 4 व्हीलर आपका ज़्यादा है, 2 व्हीलर्स में भी ये सब चीज़ें अब आनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी मैं देख रही हूँ आजकल 2 व्हीलर्स में भी सारी चीज़ों का यूज़ सॉफ्टवेयर का और सब बहुत ज़्यादा है। इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट यही है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड कंडीशन एंड ड्राइविंग राइडिंग एंड ड्राइविंग बोथ माइंडसेट को भी थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। दृष्टि एंड शी इज माय पार्टनर खुशबू, और हमारा आइडिया है फ्यूलिंग द फ्यूचर बायोइथेनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम वेस्ट पेपर रिसोर्सेज। सो बेसिकली मैं 2 प्रॉब्लम्स पे पहले फोकस करूंगी। एक ये है कि जो फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है अभी वो कन्वेंशनल फ्यूल्स है लाइक फ्रॉम पेट्रोल, तो इनका प्रॉब्लम ये है कि आने वाले टाइम पे ये एग्जॉस्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए हमें एक सोल्यूशन चाहिए, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। जो एक पहला प्रॉब्लम ये है क्योंकि अभी पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ज़्यादा है, और हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को डिकार्बोनाइज नहीं कर पा रहे, अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा है। तो पहला प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो लैंडफिल्स है, वेस्ट को डंप करने के लिए जो लैंडफिल्स है वो श्रिंकेज होते जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूँ तो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 16 मिलियन टन ऑफ पेपर एनुअली जो है वो कंज्यूम करते जा रहा है, जो लार्ज अमाउंट में वेस्टेज है। दूसरा, India's paper consumption is expected to increase by 6 to 7% over next 5 years. तो इसकी वजह से क्या होगा, जो कंजम्पशन है न्यूज़पेपर वेस्ट का वो ज़्यादा बनेगा। तो हमें अभी एक सोल्यूशन चाहिए कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकें। तो उसके लिए बायोफ्यूल्स जो है लाइक एक अटेंशन ग्रैबिंग टॉपिक है, जिसमें बायोफ्यूल्स जो एक नॉन टॉक्सिक है, रिसाइक्लेबल है, ये फ्री फ्रॉम कंपाउंड्स है लाइक सल्फर एंड कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स। और जितने भी बायोफ्यूल्स है उसमें मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोफ्यूल है बायोइथेनॉल, क्योंकि इट इज एन ऑक्सीजनेटेड फ्यूल्स, दैट मींस इट कंटेन्स 35% ऑफ ऑक्सीजन which helps in reducing the emission of nitrous and sulfur dioxide, and it can reduce up to 90% of carbon dioxide and 60 to 80% of sulfur dioxide when mixed with petroleum. Bioethanol production fits into the strategy of zero waste plan, as a result of which it will provide energy security and environmental safety. और जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है, which was first introduced in the year 2009 and it has been amended in the year 2022, इसमें क्लियरली लिखा है ऐसे वेस्ट, ऐसे एग्रो वेस्ट या ऐसे वेस्ट सबस्ट्रेट जिसमें सेल्यूलोसिक कंटेंट ज़्यादा है, उनको हम बायोइथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इस बायोफ्यूल पॉलिसी का एक मेन एम ये भी है कि गवर्नमेंट ने बोला है बाय 2025 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग होना चाहिए पेट्रोल पे और 5% ब्लेंडिंग होना चाहिए डीजल पे बाय 2030। और ये जो बायोइथेनॉल प्रोडक्शन अगर मेजर हाइट पे हुआ तो इसका जो प्लस पॉइंट होंगे वो ये भी है कि जो वेस्ट है मेरा न्यूज़पेपर वेस्ट, वो बायोइथेनॉल प्रोडक्शन मतलब जो it will create with bioethanol production will create an employment opportunity, climate change को डिक्रीज करने में हेल्प करेगा, और जो गवर्नमेंट का है आत्मनिर्भर भारत, तो ये एनर्जी इंडिपेंडेंट बाय 2047 becoming, it will help in becoming that. और अभी 2022 पे जो लास्ट डेटा है उसमें ये है कि इथेनॉल जो है उसका 10% ब्लेंडिंग हो रहा है और हमें अभी इसे 20% तक इंक्रीज करना है। मेजरली अभी बायोइथेनॉल प्रोडक्शन जो हो रहा है वो शुगर केन जूस, मोलासेस, इनसे ज़्यादा फोकस हो रहा है, पर ऐसे भी एग्रो वेस्ट अवेलेबल हैं ऑलरेडी एनवायरनमेंट में जिसमें सेल्यूलोसिक कंटेंट्स आते हैं जिनको हम अभी एक्सप्लोर ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर उसमें से एक वेस्ट है मैं जो लेके आई न्यूज़पेपर वेस्ट, तो उसमें हम लोग उससे भी कर सकते हैं बायोइथेनॉल प्रोडक्शन। And as we know that नितिन गडकरी he has already said कि जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो 120 है अप्रॉक्सीमेटली पर लीटर, अब वहीं पे इथेनॉल है 62। तो अगर हम बायोइथेनॉल प्रोडक्शन को प्रमोट करेंगे देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू लाइक डिक्रीज द रेट। सो बेसिकली क्या होता है, बायोइथेनॉल प्रोडक्शन के लिए 4 डिफरेंट सबस्ट्रेट्स को कैटेगराइज किया गया 4 डिफरेंट जनरेशंस में, जिसमें फर्स्ट जनरेशन में शुगर एंड स्टार्ची बायोमास है। इसमें हम रॉ जो सबस्ट्रेट्स होते हैं एज अ रॉ फॉर्म में उनको लेते हैं। सेकेंड जनरेशन में जितने सेल्यूलोसिक बायोमास है जिसमें मतलब सेल्यूलोस कंटेंट ज़्यादा है उनको लिया जाता है। थर्ड जनरेशन में एल्गल बायोमास है और फोर्थ जनरेशन में जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट है। रिसेंटली थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन बायोमास जो है वो अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। फर्स्ट जनरेशन बायोमास अर्लियर यूज होते थे पर उन्होंने एक
it caused a food versus fuel debate जिसमें farmers were confused whether to grow the substrate for consumption or for the production process. So nowadays the most explored generation is the cellulosic biomass or the second generation, and newspaper waste जो कि एक solid waste है वो इस कैटेगरी में फॉल होता है. तो बेसिकली ये एक आउटलाइन है. इसमें क्या होता है, जो बायोमास है वो 3 कंपोनेंट्स से मिलकर बनते हैं, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड लिग्निन. हमारा मेन फोकस है सेल्यूलोज पे. तो प्री ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी होती है जिसका काम है कि सेल्यूलोज को ब्रेक करना है और हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन को रिमूव करना है. तो प्री ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद होता है हाइड्रोलिसिस. सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंपल शुगर्स यूज करते हैं. दैट मींस उनको ग्लूकोज चाहिए. तो हाइड्रोलिसिस स्टेज में सेल्यूलोज गेट्स कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड द नेक्स्ट स्टेज इज फर्मेंटेशन. इसमें हम डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालते हैं जिससे क्या होता है, वो जो ग्लूकोज अभी हमें मिला वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल यूज दैट ग्लूकोज एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इट विल प्रोड्यूस बायोएथेनॉल व्हिच हैज एन एप्लीकेशन इन बायोफ्यूल्स. तो ये एक और ओवरव्यू डायग्राम है. यहाँ पे बायोमास है, सेम जो हमें पता है वही है. तो इस आइडिया का मेन जो है वो ये है कि जो लैंडफिल यूसेज और रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में इट विल डिक्रीज इट्स एंड वेस्ट टू वेल्थ स्ट्रैटेजी है और मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज विल बी एंड रिडक्शन इन वेस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट. इट इज ए कॉस्ट इफेक्टिव रॉ मटेरियल. जो वेस्ट है, न्यूज़पेपर वेस्ट हम लोग सब ऐसे फेंक देते हैं, A4 साइज पेपर का काम हो गया खत्म. और जो न्यूज़पेपर वेस्ट है वो भी हम लोग ज़्यादा वेस्ट के फॉर्म में यूज़ करते हैं. तो ये जो वेस्ट है ये एक वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको. थैंक यू. Your primary component is newspaper, is it? Sir, all the waste paper resources. No, waste paper में उसका primary component कौन सा है? Newspaper है? Newspaper sir. But newspaper use is going down. आप newspaper पढ़ते हो? ज़्यादा नहीं. हाँ, ज़्यादा नहीं कि पढ़ते ही नहीं हो. So newspaper use is going down. Plus a lot of those waste papers are actually coated. Yes, sir, with the- If they are coated, you can't do this. It's very difficult to do, very expensive to do. सर You are सर अभी हम मतलब ये मैं राइस हस्क पे मेन फोकस है मेरा. मैं राइस पे काम करती हूँ, सेम काम. My name is Chetan Kumar Sahu. I am RE department, Pandit Ravisankar Shukla University. सर हमारा सोलर बेस्ड प्रोडक्ट है. बेसिकली बोट है एक तरह रिवर और पॉइंट्स के लिए, ताकि जो हमारा रिवर्स में और पॉइंट्स में डेली का गार्बेज, प्लास्टिक वगैरह और इंक्लूडिंग एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह जो एक्स्ट्रा होते हैं उनको रिमूव करना है. ओके, फर्स्ट जो मार्केट में अवेलेबल है उसके बारे में बताना चाहूँगा कुछ. जो मार्केट में अभी जो बन रहे हैं वो चाइना से आते हैं और यहाँ कम ही यूज़ होते हैं. पर चाइना में इनका प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है और जो कि डीजल बेस्ड ही वर्क होता है. सेकेंड, इसमें प्रॉब्लम की बात करते हैं. प्रॉब्लम क्या आती है कि हमने डीजल वाला बोट का तो यूज़ किया, तो उसके साथ साथ उसमें मूविंग पार्ट्स रहेंगे, इंजन रहेगा, है ना, मूविंग पार्ट्स, गियर्स वगैरह रहेंगे, है ना, हल वगैरह रहेगा उसका. तो उसमें मूविंग पार्ट्स के साथ साथ हम जितना आप मूविंग पार्ट्स किसी भी चीज़ में डालते हो तो उसका उसको रिप्लेस करने, मतलब वो जल्दी रिप्लेस होता है, मतलब वो जल्दी ख़राब होता है ना. और सेकंड चीज़ ये है कि डीजल लीक वगैरह, ऑयल लीक वगैरह, है ना, जो हम उसको अच्छे से चलाने के लिए ऑयल से वगैरह डालते हैं, वो लीक वगैरह एक्वेटिक प्लांट्स में, रिवर्स में होते हैं. रैपिडली रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है. मतलब आपने डीजल तो डाला, डीजल एक टैंक है तो वो 500 लीटर, 1000 लीटर का होगा, है ना. तो बार बार उसकी रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी. उसको एक लिमिट हो जाएगा कि आपको 10 किलोमीटर का रेंज है, 10 किलोमीटर से जाना, यूज़ करके वापस आना, ऐसा टाइप. ये कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें जो चाइना के प्रोडक्ट होता है. सेकेंड, हमारा सॉल्यूशन ये है कि सोलर तो बना दिया, सोलर के साथ साथ सोलर से वो चलेगा, मतलब जितने भी उसके मूविंग पार्ट्स होंगे, मतलब गियर
वाला और कन्वेयर बेल्ट वगैरह, ये सब चीज़ें सोलर पावर चलेगी। और ये रिमोट कंट्रोल आप उसको दूर से भी रिमोट कंट्रोल के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। सर ये कनेक्शंस हैं जो सोलर पैनल और चार्ज कंट्रोलर, एक चार्ज कंट्रोलर इन्वर्टर जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करके फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करके मोटर्स को प्रोवाइड करेगा। ऑप्शनल जनरेटर हमने यूज़ किया है ताकि अगर सोलर एक वो भी एक लिमिटेशन है सोलर भी, कि सोलर का यूज़ तब तक हो पाएगा जब तक आप सन डे टाइम तक, मतलब सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक लगभग 8 घंटे, तो 8 घंटे जितना सोलर पड़ेगा उसके हिसाब से वो आप वर्किंग देगा। इसमें ऑप्शनल डीजल जनरेटर डीजी का यूज़ करेंगे ताकि वो डीजल का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके वापस से दूसरे कंपोनेंट को दिया जाएगा। सर ये कंपोनेंट्स के जो स्पेसिफिकेशंस हैं जो हमने इसमें यूज़ कर लिए हैं, सोलर पैनल्स के लिए है इन्वर्टर एसी और 5 to 5.5 किलोवाट तक का, और ये वाला जो मॉडल है वो कन्वेयर बेल्ट के लिए रहेगा, जो कन्वेयर बेल्ट यूज़ करेंगे उसके लिए। ये जनरेटर है डीसी जनरेटर जो ऑक्सिलरी यूज़ के लिए रहेगा उसको रन करने के लिए। सेकेंड इस टाइप का रोटर यूज़ होगा जो कि ज़्यादा मतलब ज़्यादा महंगा नहीं रहेगा। ये कंट्रोलर है रिमोट कंट्रोल, ये बेसिकली क्रेन वगैरह भी यूज़ होता है वो वाला कंट्रोलर। बैटरी और ये 4 प्राइस वगैरह है ना, हर एक प्राइस कितने क्वान्टिटी में लगने वाला है। अराउंड 5.5 लाख से 6 लाख तक का खर्चा बढ़ेगा। जो बोट रहेगा वो 30 किलोमीटर तक रनिंग उसकी रहेगी, मतलब सोलर से है ना, और 8 आवर तक वो चलेगा और अराउंड 1000 से 1500 किलो तक का वो वेट कैरी कर सकता है। वर्किंग मॉडल्स मतलब कंट्रोलर के थ्रू चलेगा। लास्ट है एडवांटेजेस के, मतलब इसकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो यूज़ करेगा वो 1 से 2 ईयर के अंदर रहेगा है ना, और इसका यूज़ करने से आपको जो एडिशनल प्रोवाइड होगा बेनिफिट की गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको ये सारा चीज़ यूज़ करके आपको एक अच्छा उदाहरण पेश करना। और जो इस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद उसको यूज़ करने के बाद उससे पैसा जो कमाएगा किस तरह से कमाएगा, जो गवर्नमेंट रिवर का क्लीनिंग और उसके लिए पॉन्ड क्लीनिंग वगैरह के लिए गवर्नमेंट टेंडर्स निकालती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो टेंडर निकालती है अपने रिवर्स को क्लीन करने के लिए, अपने एरिया को क्लीन करने के लिए, उसके थ्रू। और प्लास्टिक जो भी गार्बेज इकट्ठा हो रहा है प्लास्टिक वगैरह उसका वो करने के लिए रिसाइकलिंग वगैरह के लिए। सही ये हमने छोटा सा मॉडल बनाया था वो जो इस टाइप का रहेगा। इसके निचले कन्वेयर बेल्ट में एक कटर भी रहेगा तो जो प्लांट्स वगैरह को काटने का काम करेगा, एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह, ताकि वो इजीली स्टोरेज टाइम तक पहुँच सके। सोलर पैनल यस ये 3D डिज़ाइन है जो मैंने बनाया है और कुछ इस तरीके से वो दिखेगा। ऊपर सोलर पैनल है, ये रोटर के कन्वेयर बेल्ट के लिए इसमें जगह देगी, इसको भी ऐसे ही बना के रखा ताकि वो समझ जाए। रेफरेंसेस हैं चेतन सिंह सोलंकी सर के। आपने लोड कैलकुलेशन किया यस कि जितने पैनल आपके होंगे उसमें से वो कंटिन्यूस चल पाएगा वो कि उसको बैटरी बैकअप भी चाहिए, दोनों चाहिए
नो सर, मतलब बैटरी जो भी पैनल जनरेट करके देगा वो बैटरी में जाएगा, बैटरी से नहीं वो समझ रहा हूँ मैं, जितना सोलर है आपके पास पैनल का आउटपुट, Yes, उसमें sir. आपका पूरा काम होगा, क्योंकि तीन चीज चाहिए, एक तो कलेक्ट करना पड़ेगा, अभी आप बोल रहे हो श्रेड भी करते हो आप, करेक्ट, एंड तीसरा बिल्च पंप भी चाहिए, क्योंकि जो पानी उसमें से ड्रेन होता है उसको बोट के बाहर करना पड़ेगा, हाँ, वो उसमें और चौथा ये माल को आप लैंड पे कैसे ले जाओगे, ये बोट ही जाएगा कि दूसरा सब्सिडरी बोट होगा? नो सर, बोट ही जाएगा। यही जाएगा। हाँ। So therefore you are now up against a completely different set of calculations. This is point number one. Point number two is this a private operation or this is a public operation? इसका बायर कौन होगा? गवर्नमेंट ही होगा ना? बायर प्राइवेट में कोई है? सर, आप बोर्ड्स बनाएंगे क्या पूरा मैनेजमेंट? नगर निगम वाले बायर्स रहेंगे और आप हम बेचेंगे बोर्ड बना के? बोट बना के बेच देंगे। आप ऑपरेट नहीं करेंगे? नो, जो भी इसका हम सिखा देंगे कैसे यूज करना, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी आपने तो कहीं पता किया है कि इसको यूज करेंगे लोग? यस मैम, हमारे से नगर निगम रायपुर के कुछ लोगों ने कॉन्टेक्ट किया था इसके वर्किंग को लेकर। और आपका एक यूनिट बनाने का खर्चा, एक बोर्ड बनाने का? मैम वही 5.5 लाख से 6 लाख के अराउंड, एक मोटा वो कॉस्टिंग है। आप एक बोर्ड को बेचेंगे में कितना है? इसमें आपको प्रॉफिट कितना है? मैम वो कॉम्पिटिटिव मार्केट है कॉम्पिटिटिव नहीं है? नहीं है, अभी नहीं है। तो ये अभी कैसे क्लीनिंग होती है हमारे देश में? बहुत मैनुअली होता है, मैनुअली नहीं होती है। नहीं होती है। You have three sources actually. That's why I'm asking. One is your African pile or water acid. That is one kind of problem. The other is floating plastic. Yes. The third one is indeterminate debris. For example, natural disasters where it ends up in dams, desilting and so on. So वही मैं पूछ रहा था, solar will not be able to take the load. We have the same problem with earth movers. Today we have earth moving equipment. Mining में आप तो जानते ही होंगे, definitely जानते होंगे. So you can ask him. Yes, we want to use electric vehicles, but we can't because there are some problems which it's you cannot electric technology can't surpass. फिर बाद में आपको डीजी सेट चलाना है तो डीजी सेट को गाड़ी में डाल के डीजल का गाड़ी ले लो ना, right? And then second problem which is curious, मजाक नहीं कर रहा हूँ. Going to present my idea, biocompatible, today I am going to present my idea, biocompatible multi-targeted bandages for complete wound management. As we know, wound is a मतलब हम इसे जानते हैं घाव के नाम से। ये बेसिकली दो तरीके से होते हैं, एक तो हमारा होता है एक्यूट वुंड और दूसरा हमारा होता है क्रोनिक वुंड। एक्यूट वुंड यदि हमें बर्न हो गया या कहीं एक्सीडेंट हो गया, इन सभी रीजन से यदि कोई वुंड हो रहा है तो उसे हम एक्यूट वुंड की कैटेगरी में रखते हैं। एंड सेकंड थिंग इज क्रोनिक। डायबिटीज इज द मोस्ट केस इन इंडिया आइदर वर्ल्ड आल्सो। तो डायबिटीज होने के कारण ये जो है लॉन्ग टाइम होने के कारण ये फूड अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम डायबिटिक फूड अल्सर कहते हैं। तो ये जो कैटेगरी होती है ये हमारी क्रोनिक वुंड की होती है। इसके अलावा प्रेशर अल्सर, सर्जिकल अल्सर, ये सारे जो होते हैं वो क्रोनिक वुंड की कैटेगरी में आते हैं। दिस इज द प्रिविलेज ऑफ वुंड वर्ल्ड वाइड। यदि हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो 6.5 मिलियन पीपल अफेक्टेड होते हैं पर ईयर फ्रॉम द क्रोनिक वुंड से। एंड इसमें 28 बिलियन कॉस्ट पर ईयर यूटिलाइज होता है फॉर देयर ट्रीटमेंट। इसी तरीके से यूनाइटेड किंगडम 3.8 मिलियन पीपल अफेक्टेड होते हैं एंड 8.3 बिलियन कॉस्ट पर ईयर इसमें यूटिलाइजेशन होता है। इंडिया की यदि हम बात करते हैं तो 15 मिलियन पीपल अफेक्टेड होते हैं और 4 बिलियन कॉस्ट पर ईयर इसमें यूज होता है। ओवरऑल यदि हम देखते हैं तो हर ईयर पे क्रोनिक वुंड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और उसमें जो ट्रीटमेंट है वो भी उसका कॉस्ट इतना ज़्यादा है। दिस इज द वुंड डेटा ऑफ छत्तीसगढ़ की इसमें किस किस रीजन से कितने परसेंटेज वुंड काउज हुए हैं। लाइक यदि कट बाइट वुंड इंजरी है तो ये 30% है, फ्रैक्चर के कारण 17.30%, हेड इंजरी 10.30%। तो दिस इज द डाटा ऑफ द छत्तीसगढ़। सो बेसिकली प्रॉब्लम जो होती है क्रोनिक वुंड के साथ वो
4 चीज़ें होती हैं। पहली तो ये है कि जब वुंड होती है तो हमारी स्किन रप्चर होती है, तो जो बैक्टीरिया है वो बायोफिल्म का फॉर्मेशन कर लेता है। जब बायोफिल्म का फॉर्मेशन होता है तो जो ऑक्सीजन डिमांड है जिसके कारण उसके ट्रीटमेंट हीट होते हैं वो रुक जाती है। सेकेंड थिंग ये है कि उसमें ब्लिस्टरिंग हो जाती है, मतलब एक लिक्विड जैसा फॉर्मेशन हो जाता है। थर्ड थिंग ये है कि पेरिफेरल इस्कीमिया हो जाती है, जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है उस वुंड के ट्रीटमेंट के लिए वो स्टॉप हो जाती है। एंड लास्ट इज अ मेटाबॉलिज्म, हमारी ब्लड हर न्यूट्रिएंट को पास करती है, लेकिन जब वुंड का क्रोनिक वुंड की केस आती है, बायोफिल्म का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस टाइम एक कंडीशन बनती है जब वो बाईपास कर जाता है अपने न्यूट्रिएंट को। तो बेसिकली ये हमारे क्रोनिक वुंड के साथ प्रॉब्लम है। ये सारे अवेलेबल हैं मार्केट में सॉल्यूशन ऑफ क्रोनिक वुंड। सो माय सॉल्यूशन इज अ बैंडेज। बैंडेज इसलिए क्योंकि सबसे पहली चीज ये है कि बैंडेज जो होती है वो बायोकम्पैटिबल होती है। सेकंड थिंग ये है कि हम इसे इजीली एप्लीकेबल कर सकते हैं हमारे साइड ऑफ स्किन पे। नेक्स्ट थिंग ये है कि एक तो ये सेफ्टी भी है, इफिकेशियस भी है, और सेकंड थिंग बायोडिग्रेडेबल है। सो मेरा सॉल्यूशन में जो मैं कंपोनेंट यूज करने जा रही हूँ, दे आर बेसिकली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। चूँकि जो वुंड है वो 4 फेजेस में ट्रीटमेंट होती है। सबसे पहले हीमोस्टैसिस एजेंट, सेकंड इन्फ्लेमेशन, थर्ड है प्रोलिफरेशन और फोर्थ है टिश्यू रिजनरेशन। तो जो मेरा फर्स्ट हीमोस्टैटिक फेज है उसमें हम सोडियम एल्जिनेट यूज करेंगे, दैट इज नेचुरल पॉलीमर, मेंथा पाइपरेटा फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एंटी इन्फ्लेमेशन, एंड hyaluronic acid फॉर द प्रोलिफरेशन, एंड राइस ब्रान एक्सट्रैक्ट फॉर द लास्ट फेज ऑफ द टिश्यू रीमॉडलिंग। दिस इज द मेथोडोलॉजी वेयर वी प्रिपेयर राइस। हम 3 मॉड्यूल पे काम करेंगे, राइस ब्रान एक्सट्रैक्ट, सेकेंड थिंग हम हाइड्रोजेल बनाएंगे सोडियम एल्जिनेट और hyaluronic एसिड का, एंड फाइनली इस हाइड्रोजेल में हम ऐड करेंगे राइस ब्रान एंड मेंथा पाइपरेटा, एंड फिर इसे फ्रोजन हाइड्रोजेल में कन्वर्ट करके इसे लायोफिलाइज करके हम इसे बैंडेज का फॉर्मेशन करेंगे। दिस इज द सर्वे ऑफ बैंडेज इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट। सर इसमें जितने भी मेडिकल स्टोर हैं उसमें ये एक सर्वे है कि पर डे कितने बैंडेज यूज होते हैं। तो जब हमने सर्वे किया था तो पर डे 30 to 40 बैंडेजेस यूज होते हैं। तो यदि इस टारगेट के अकॉर्डिंग हम यदि मंथली देखते हैं तो 1200 बैंडेज यूज होते हैं, और लेकिन बैंडेज यदि वो 1200 यूज हो रहे हैं तो उनके पास स्टॉक लेकिन होता है 1500। तो ओवरऑल 3000 जो है 3000 ओवरऑल रायपुर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। तो यदि हम एक मंथ के अकॉर्डिंग देखें तो 1500 में बैंडेज रिक्वायरमेंट है, तो ओवरऑल 45 मिलियन बैंडेज पर मंथ रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट थिंग ये है कि यदि हम ओवरऑल छत्तीसगढ़ की बात करें तो 33 मिलियन पीपल है ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट मिलाकर, जिसमें यदि एक पर्सन 5 बैंडेज मतलब वुंड रेट डेटा 10% पीपल जो है वुंड से सफर करता है। तो हमारा जो एवरेज बैंडेज यूज होता है वो 5 बैंडेज यूज होता है। एस्टिमेटेड यूटिलाइजेशन यदि हम बात करें 1 मिलियन के साथ, तो हमारा 165 मिलियन बैंडेजेस रिक्वायरमेंट है। बट जो सप्लाई होती है वो बैंडेजेस होती है 1 मिलियन इंटू 33 मिलियन। सो एवरेज बैंडेज हमें यूज करने के लिए जो चाहिए, तो 33 मिलियन से यदि हम इसे माइनस करते हैं तो ओवरऑल बैंडेज की जो रिक्वायरमेंट है वो 132 मिलियन की रहेगी। ये सारे अवेलेबल हैं, बट इनके जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है। नेक्स्ट थिंग, जो मेरा बैंडेज जो प्रिपेयर होगा मैम, जिसमें हम 4 इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, तो उसके कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट जाएगा वो 305, मैन्युफैक्चरिंग 76, पैकेजिंग 3.05, मार्केटिंग 15। तो ओवरऑल जो रहेगा वो 399.35 पर यूनिट। यदि हम मार्कअप की बात करें तो जो बैंडेज अवेलेबल है क्रोनिक वुंड के लिए वो 600 से लेकर 2000 तक मिलता है। तो हमारा जो प्रॉफिट का रहेगा वो 206.5 पर यूनिट का रहेगा। मार्कअप जो परसेंटेज है वो 15%। सो बेसिकली जो मेरा कहना है कि जितने भी बैंडेजेस हैं जो उस रेट पे मिल रहे हैं और हमें रिक्वायरमेंट है 33 मिलियन पीपल के
cold chain for your bandages? Cold chain. Does it have to be stored at stores and Storage. No, sir. it doesn't require? Normal temperature. All right. Normal temperature में yes. Next question. Does it require approval from DC India or FDA or somebody? And a certification. It does. It does. Of course. Yes, sir. It must be. Yes, sir. Yes, sir. कहाँ है आपके पास में कहाँ है? And how long will that take? No, first DC India, no? So you haven't considered that those legal and regulatory aspects at all. That's fine. Yes. Is this available in the market anywhere or you don't invent this? No, sir. This is not available. This is not available. Actually, brands are available, but our जो ingredient. Your particular product isn't available? Not yet. No, sir. Okay. I'm सर हम बेसिकली इसलिए सही है क्योंकि हम जितने भी प्रोडक्ट यूज करें वो नेचुरल रहेगा तो डाइट ले रहे हो अच्छे से? अरे यहीं पे गलती कर देना। आओ मैं आपको बताता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अवर आइडिया न्यूट्रा काउंट। हमारा जो ये है, हमारा जो मोटिव है रिवॉल्यूशनाइजिंग फिटनेस न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ कॉन्शियस इंडिया। तो बेसिकली हमने लॉकडाउन में देखा है कि लोगों का हेल्थ के प्रति काफी रुझान बढ़ा है। जो अवेयरनेस है हेल्थ को लेकर और वेलनेस को लेकर वो काफी इंक्रीज हुई है। सो जो हमारा आइडिया है वो इस चीज को टारगेट करता है कि आफ्टर पोस्ट पैंडेमिक देयर इज अ सर्ज इन फिटनेस एक्टिविटीज लाइक जिम, वर्कआउट एंड योगा। सो बेसिकली चैलेंजेस क्या आती है इस चीज में? सो हमारे इंडिया में जब हम प्रोटीन का डाटा देखते हैं तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ जो पीपल है वो अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। On a healthy person requires 0.8 times of their body weight protein in gram, and almost 90% जो people है उनको ये पता ही नहीं है कि उनका डेली प्रोटीन इंटेक कितना है। सो और ऑल्सो जो हमारी डाइट है टिपिकल इंडियन डाइट, वो घर के खाने से इतनी फुलफिल नहीं हो पाएगी कि हम अपना डेली प्रोटीन इंटेक पूरा कर पाए। सो यही हम लोग इसी चीज को सॉल्यूशन में लेके आए हैं। तो ये हमारे जितने भी होममेड फूड आइटम्स है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं स्प्राउट्स 3 ग्राम प्रोटीन है, एग 6.2 ग्राम्स एंड सोया चंक्स जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है 26 ग्राम्स एंड पनीर 9 ग्राम। सो जो हमारा न्यूट्रा काउंट है, जो हमारा आइडिया है वो एक कन्वीनियंट अफोर्डेबल प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील्स प्रोवाइड करेगा जिम्स में, जिसमें इंक्लूड होगी बॉइल्ड एग्स, बनाना, स्पोर्ट्स, प्रोटीन शेक्स एक्सेट्रा। एंड हम लोग एलिमिनेट कर देंगे होम प्रिपरेशन की नीड को और इस ऑप्शंस को जो उनका जो जिम इंडिविजुअल्स है उनका टाइम और एफर्ट समय बचाएगा। ये हमारा न्यूट्रा काउंट पे कार्ड है। इस चीज को हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूज करेंगे। जो भी ये कार्ड हमारे ऐप वेबसाइट से कनेक्टेड रहेगी जिसमें वो अपना ट्रांजैक्शन ट्रैक कर पाएंगे और साथ साथ उनको न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन भी मिलेगी कि उन्होंने जो खाया उनमें न्यूट्रिशन कंटेंट्स कितने थे। तो ये हमारा कार्ड है जो कि NFC टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जिसमें 2 तरह के पेमेंट्स हैं, जिसमें आप QR को भी स्कैन करके हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और उसको एज अ आप NFC टेक्नोलॉजी ये हम जिस फोन में NFC सपोर्ट करता है वो हम टैप करते हैं तो ये हमारी वेबसाइट ओपन हो जाता है। तो जब आप हमारी वेबसाइट को ओपन करेंगे, आप पहले उसमें प्रोफाइल रजिस्टर करेंगे, अपना आईडी बनाएंगे, फिर आप इंग्रेडिएंट्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप पे कर सकते हो और उसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपको आसपास की अपनी जितने भी जिम्स है जहाँ हमारे आउटलेट्स होंगे उसकी भी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। और नेक्स्ट आपने जो चीज़ खाई है उसका न्यूट्रिशनल इंटेक एज अ डेटा ग्राफ के साथ आ जाएगा। सो ये हमने कुछ सर्वे किया था कुछ 4-5 जिम्स का, जिसमें हमने टोटल 62% से पूछा था। उसमें से हमने कुछ क्वेश्चन उनसे पूछे थे, जिसमें पहला डाइट टाइप, जिसमें नॉनवेज कितने हैं, वेज कितने हैं और वेजिटेरियन कितने हैं। और दूसरा है हाई मार्केट प्राइस, यानी कितने लोगों को लगता है कि जो उन्हें मार्केट में मिलता है, जैसे हम देखते हैं बॉइल्ड एग्स हमको मिलते हैं एटलीस्ट 10 रुपीज मिलता है, जबकि वो आता 5 रुपए का है बस। तो हमने उनसे पूछा था कि हाई मार्केट प्राइस कितने लोगों को लगता है, तो उसमें से 47 लोगों ने कहा था कि हाँ मार्केट में थोड़ा हाई प्राइस है
इसलिए वो लोग घर में प्रेफर करते हैं। और 15% को उनका फर्क नहीं पड़ता, वो अलाउ मतलब कर सकते हो, लोग बाहर से खा सकते हो। नेक्स्ट थर्ड जो इजी अवेलेबिलिटी है कि उनको कितनी इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो 40% लोगों ने 40 लोगों ने कहा कि उनको जिम के आसपास तो ये चीज़ें नहीं मिलती, और 22% लोगों ने कहा कि मिल जा रहा है, उनको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट इज प्रोटीन रिक्वायरमेंट की हमने एवरेज इंडिविजुअल से पूछा कि इनकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पा रही है, तो हमने चेक किया कि 52 लोगों की नहीं हो पा रही थी, जिसमें से 10 लोग बस कर पा रहे थे अपने डेली प्रोटीन इंटेक को पूरा। और ऑनलाइन पेमेंट ऑलमोस्ट 100% लोग ऑनलाइन पेमेंट यूज करते हैं जिम में, मतलब वो लोग रखते हैं ऑनलाइन पेमेंट, वो कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज डू दे वांट न्यूट्रा कनेक्ट अकाउंट और नॉट, तो 85.5% लोगों ने कहा कि हाँ अगर कुछ ऐसा सिमिलर आइडिया और सेम न्यूट्रा अकाउंट अगर आता है तो वो प्रेफर करेंगे। दिस इज ऑल। थैंक यू। ओके, सो ये एक ऐसा ऐप है जो हमारे जितने भी एक्सपेंस हैं उसको ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा, हमारे सेविंग्स को बढ़ाएगा और हमें ओवर एक्सपेंस करने से बचाएगा। तो कैसे करेगा उसको आगे देखते हैं। ओके, सबसे पहले ये एक फोटो है जो ये दिखाना चाह रहा है कि कोई भी इंसान हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो या फिर जो भी हो, कोई बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, अगर उसके पास पैसा है तो सबको ये प्रॉब्लम रहता है कि मुझे मेरा पैसा जा कहाँ रहा है, उसको समझ नहीं आता कि उसका पैसा जा कहाँ है। ठीक है, तो ये बस उसी चीज को सॉल्व कर रहा है। मेरा जो आइडिया है वो मेजर 3 प्रॉब्लम को डील करेगा। सबसे पहला सेविंग। सब लोग सोचते हैं कि हम लोग सेविंग करें, लेकिन मोस्ट ऑफ पर्सन सेविंग नहीं कर पाते। नेक्स्ट अननेसेसरी एक्सपेंस। इसका मतलब ये कि हम लोग बहुत सारे ऐसे खर्चे करते हैं जो हमारी जरूरत की नहीं होती, हमें जरूरत नहीं होती, ऐसे एक्सपेंस करते हैं। और थर्ड, जो भी ऑनलाइन पेमेंट ऐप आए हैं उसके कारण हम लोग ओवर एक्सपेंस करना शुरू करते हैं। लगभग हर इंसान के लिए वो है कि मतलब फील करते हैं कि हम लोग ओवर एक्सपेंस करते हैं ऐसा। अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन पहले ये है सेविंग के लिए कि जब हम लोग बैंक में अकाउंट खोलते थे तो बेसिकली हम लोग सेविंग के लिए खोलते थे कि हाँ हमको वहाँ पैसा सेव करके रखना है, लेकिन अब ऑनलाइन पेमेंट के कारण डायरेक्ट वहाँ से पैसा निकालते हैं तो सेविंग नहीं हो रहा है। और नेक्स्ट चीज, अगर अभी हमको पैसा सेव करना है तो हम लोग 2 चीज कर सकते हैं, या तो गुल्लक खरीद कर पैसा डालें, या दूसरा चीज हम लोग किसी एक ट्रस्टेड पर्सन के पास अपना पैसा रखते हैं, या फिर तीसरा एक और बैंक अकाउंट खोल लें। और बैंक अकाउंट 2-3 रहते हैं सबके पास तो और खोलने का कोई मतलब नहीं। सेकंड, अननेसेसरी एक्सपेंस। अननेसेसरी एक्सपेंस मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ भी खर्चे करते हैं, और अगर वो लोग अपने खर्चे का पता लगा दिए कि हाँ मैं यहाँ खर्चा कर रहा हूँ, अपना एक्सपेंस ट्रैक कर दिए, तो उनके लिए आसान हो जाएगा कि उनको क्या खर्चा करना है, क्या खर्चा नहीं करना है। नेक्स्ट, ओवर एक्सपेंस ड्यू टू ऑनलाइन पेमेंट। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम लोग जब कैश यूज करते हैं तब हमको ये फील होता है कि हम लोग पैसा दे रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट में हम लोग को ऐसा कभी फील ही नहीं होता और जस्ट हमको नंबर्स होता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ऐसा मिस इंटरप्रेट नहीं करना है। मेरा जो ऐप है कि ये ऑनलाइन मोड को बढ़ावा मतलब कम करने वाला है, ये ऑनलाइन मोड को जबकि बढ़ावा देने वाला है। कैसे पार्ट होता है, तो ये 3 चीज है, इसको अगर हम लोग डील करेंगे तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो मेरा जो ऐप है उसमें कुछ की फीचर हैं जिससे वो 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। सबसे पहले, ट्रैक एक्सपेंस ऑटोमेटिकली। ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिसमें हम लोग एक्सपेंस ट्रैक कर सकते हैं या फिर खुद से अपना डायरी बना के एक्सपेंस ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन उसको हमको डेली अपना बनाना पड़ेगा। यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंस को ट्रैक करेगा। सेकंड, हमको मनी सेव करने के लिए हेल्प करेगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे हम अपना कुछ अमाउंट सेव करके रख सकते हैं और उसको बाद में यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक 3 मंथ, 6 मंथ एंड 1 ईयर। नेक्स्ट, हमको अपना एक्सपेंस, ओवर एक्सपेंस को रिड्यूस करने का टिप्स देगा बाय ट्रैकिंग आवर एक्सपेंस। जो हम लोग का एक्सपेंस है उसको ट्रैक करके रिड्यूस करने का टिप्स देगा। और जब हम लोग अननेसेसरी एक्सपेंस करेंगे उससे पहले हमको वार्न देगा कि हम लोग अननेसेसरी एक्सपेंस कर रहे हैं। और हाँ, जो ये बात था ओवर एक्सपेंस वाला, कि जब हम लोग पैसा देखते हैं तो हमको सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो हम लोग पैसा को अगर पिक्चर के फॉर्म में देखेंगे तो मे भी हमको फील होगा कि हाँ हम लोग का पैसा आगे जा रहा है। और अदर फीचर्स, ये तो यूजर फ्रेंडली है, ये
अगर हम लोग कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो उसको भी इंटर करेगा, डाटा ट्रैक कर सकते हैं। हम लोग डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे अपना बजट बना सकते हैं। ऑटोमेटिकली ये कुछ अमाउंट अगर हम लोग किए हैं, अगर हम लोग 5000 दे रहे हैं तो 5000 का 5% सेव कर देना, तो 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए सेव कर देगा। नेक्स्ट, अब हम लोग डेली, वीकली और मंथली बेसिस में अपना समरी देखेंगे और उसी के थ्रू ग्राफ एंड चार्ट के थ्रू हमारा जो भी एक्सपेंस है उसका एक समरी बताएगा और इससे हम लोग अपना ओवर एक्सपेंस को कम कर सकते हैं। ओके, अब ये काम कैसे करेगा? तो सबसे पहला ग्रुपिंग ऑफ एक्सपेंस। तो हमारे जितने भी टाइप के एक्सपेंस होते हैं उसका हम लोग 3 कैटेगरी बनाने वाले हैं। सबसे पहला प्राइमरी कैटेगरी, जिसमें जो ऐसा है हम लोग के खर्चे जो हमें जरूरत है और जरूरी है। सेकेंडरी, ऐसा खर्चे जो हमको जरूरत तो है लेकिन फिलहाल हमारी जरूरत नहीं है। और थर्ड, ऐसे खर्चे जो ना की जरूरत है और नहीं जरूरी है। ओके, और हाँ, ये जितने भी कैटेगरी है किसी भी पर्सन के लिए डिफॉल्ट रहेगा, उसका जेंडर और उसका प्रोफेशन और उसका इनकम देखते हुए एक डिफॉल्ट सेटिंग रहेगा और उसको वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक है ग्रुपिंग। प्राइमरी में हम लोग हेल्थ, एजुकेशन, वेजिटेबल्स, बिल्स रख सकते हैं। सेकेंडरी में आउटसाइड डाइनिंग, अपीयरेंस, गिफ्ट, टीवी सब्सक्रिप्शन, ये सब ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। और टर्सरी में गैम्बलिंग, अल्कोहल, एक्सेसरीज, ये सब। ओके, सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी। तो इसमें मेन बात यह है कि जब भी आदमी पेमेंट करेगा तो वहां पे उसको अपना एक कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इस कैटेगरी में पेमेंट करना। जैसे कि जब भी पेमेंट करते हैं तो वहां पे हम लोग का एक ऑप्शन रहता है नोट करने का, जो कि ऑप्शनल होता है। बस इसमें ऐसा होगा कि वो ऑप्शनल की जगह वो कंडीशन मतलब करना ही है कि हमको एक कैटेगरी सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर तो जो भी है उस कैटेगरी में अपना इनपुट डाल देगा और हमारा एक्सपेंस को ट्रैक करेगा। हाँ, उसके बाद फिर हमको ये टिप्स मिलेगा कि हम लोग अपने खर्चे कैसे कम कर सकते हैं और उसके उससे हम लोग अपने खर्चे कम कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं और साथ ही साथ जो ओवर एक्सपेंस की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़े से कुछ ऐप्स हैं जिसमें हम लोग एक्सपेंस ट्रैक कर सकते हैं और उसमें बहुत सारी कमियां हैं। सबसे पहला कमी ये है कि जब भी हम लोग कुछ चीज़ परचेज करते हैं तो हमको जाके वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कि आज मैं ये खरीदा हूँ, लेकिन हमारा जो ऐप होगा उसमें वो ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा। अच्छा, एक और ऐप है फिन आर्ट समथिंग टाइप, उसमें वो मैसेज को देख के, अगर मैसेज का हम लोग परमिशन देते हैं तो मैसेज से वो ले लेता है, लेकिन अपने में वो ऑटोमेटिक करेगा क्योंकि वहाँ पे हम लोग कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं पेमेंट के टाइम। बाकी अदर थिंग्स हमको इनकम का सोर्स ऐड करना पड़ेगा और ओवर एक्सपेंस का प्रॉब्लम रहता है ऑनलाइन पेमेंट्स को लेकर। थैंक यू। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, ऑलरेडी जैसे मैं सेंट्रल बैंक की कस्टमर हूँ तो मेरे पास वो सेंट्रल बैंक